हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करा रहा सी मैथ्स का, जिंदा नाम है ट्रायंगल। पिछले लैक्चर दे विच असीं 3 थ्योरम डिस्कस कीतियां सी, थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 ते थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.3 की सीगी आपां एक बारी स्टेटमेंट रिवाइज करते हैं। आपां एक बारी इहदा प्रूफ कर चुके हैं। अज आपां स्टेटमेंट में तुहाडे सामने तीनों लिखियां होईयां ने, इहदे बेसिस ते आपां कुछ क्वेश्चन करांगे। सो थ्योरम 6.3 दी स्टेटमेंट की है, if in two triangle the corresponding angle are equal, then their sides are in same ratio, hence the two triangle are similar। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ a similarity, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ corresponding angle equal ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ corresponding sides ਵੀ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ corresponding angle और corresponding side ratio ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। then theorem 6.4 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, if in two triangle the side of one triangle is proportional to the side of other, then their corresponding angle are equal, hence the two triangles are similar। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ corresponding side ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ corresponding angle ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। अगर corresponding sides ratio ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ corresponding angle equal ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SSS ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਥਿਓਰਮ 6.4 ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਿਓਰਮ 6.5। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ, if the angle of one triangle is equal to the angle of other and their side including these angle are proportional, then the two ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इहदे कहने का मतलब है कि इहदे विच एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल ते उन्होंने इंक्लूड करती हुई साइड्स रेशो विच है, तो दोनों ट्रायंगल के होंगे, सिमिलर होंगे। आप इहदा प्रूफ कर चुके हैं और इस सिमिलैरिटी नूं बोलते हैं ASA सिमिलैरिटी। सो तुहाडे अगे थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 ते थ्योरम 6.5 दी स्टेटमेंट तुहाडे अगे लिखी हुई है। इस स्टेटमेंट नूं एज इट इज तुसीं याद भी रखना और इहदे प्रूफ एक बार तुसीं देखने, कई बारी तुहानूं प्रूफ भी पूछ सकते हैं। तुहानूं पूछ सकते हैं थ्योरम 6.3 या पूछोगे व्हाट इज AAA सिमिलैरिटी, तो तुसीं उहदी स्टेटमेंट देख के खुद प्रूफ देना है। इदां ही तुहानूं पूछ सकते हैं व्हाट इज SSS सिमिलैरिटी, या बोलोगे प्रूफ थ्योरम 6.4, तो तुसीं स्टेटमेंट देख के उहदा प्रूफ लिखना है। इदां ही थ्योरम 6.5 जो कि है ASA सिमिलैरिटी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। सॉरी ASA नहीं है, दिस इज SAS सिमिलैरिटी, क्योंकि एक एंगल है और दो साइड्स है। तो SAS सिमिलैरिटी ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਥਿਓਰਮ 6.5 ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ if in two triangle the side of one triangle is proportional to the side of other, then the corresponding angle are equal and hence prove that the two triangle are similar। मतलब तुसी की प्रूफ करना है थ्योरम 6.4 ਨੂੰ। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल इन्हां थ्योरम दे बेसिस ते पूछ सकते हैं, या कई बारी इन्हां दे बेस ते कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जिवें कि आपां एक क्वेश्चन सैंपल करन जा रहे हैं, जिंदे या थ्योरम 6.3 या 6.4 या 6.5 लगेगी, या तिन्नां चों कोई भी शायद इकट्ठियां भी लग सकदियां ने। आपां नूं देखना है क्वेश्चन विच की हैगा, आपां आइडेंटिफाई करांगे किहड़ी थ्योरम लगेगी ते उत्थों दी किहड़ा रिजल्ट साडे सामने आऊगा। सो क्वेश्चन तुहाडे अगे फिगर दित्ती होई सानूं की लिखा है इन अ फिगर PQ is parallel to RS, then prove that triangle POQ is similar to triangle SOR। तो अपन की प्रूव करना है कि ट्रायंगल POQ जो कि आ रहा है तो ट्रायंगल POQ is similar to triangle SOR, ये चीज प्रूव करनी है। अपन गिवन की है PQ is parallel to RS, तो अपन पहला मार्क करते हैं जो लाइंस पैरेलल ने, PQ is parallel to RS। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਗਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.3, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.4, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ SAS ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.5। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ PQ is parallel to RS, और ਸਾਨੂੰ टू प्रूव की करना है, सानू टू प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल की आ रहे हैं सिमिलर, दैट इज POQ सिमिलर आना चाहिए है ट्रायंगल SOR। मैं तुहानू पहला भी दस चुके आया वा कि इस सिंबल का मतलब होता है सिमिलर। तो आपां नू की प्रूव करना है कि ट्रायंगल POQ सिमिलर आ रहा है ट्रायंगल SOR दे। तो आपां प्रूफ दे विच चलदे हैं। देखो क्लीयरली आपां नू एक चीज़ पता है कि जदों भी लाइन्स पैरेलल होंदियां ने तो कॉरस्पोंडिंग एंगल ते अल्टरनेट एंगल की होंदे ने इक्वल। तो पहला वही कंसैप्ट यूज करते हैं असीं। सानू दिख रहा है कि आ एंगल और आ एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों की ने अल्टरनेट पेयर ने। सेम तरीके दे नाल
आ वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे Q और R, क्योंकि ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ पेयर ने। इसी तरीके नाल आ वाला एंगल जिहड़ा है तुहाडा ਉਹ भी इस एंगल ਦੇ इक्वल होएगा, क्योंकि ਇਹ ਕੀ ਨੇ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਸ ਐਂਗਲ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ, दूसरा एंगल ए रहा दो एंगल ते तीसरा तीन एंगल आपस विच इक्वल ने, मतलब आप कह सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल आपस विच इक्वल ने। तो केड़ी थ्योरम लगेगी, थ्योरम 6.3, क्योंकि अपन पता है कि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे तो उत्थों दी अपने आप ही रिजल्ट बन जाएगा कि साइड प्रपोर्शन ही है। तो इन्हां दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके असीं की कह देंगे कि ट्रायंगल की है सिमिलर है। तो आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप केड़े केड़े दो ट्रायंगल चकांगे, एक ट्रायंगल चकांगे POQ एंड दूसरा ट्रायंगल आप केड़ा चकांगे RSO। सब तो पहला तो मैं लिखूंगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट पेयर है। कि आप क्या कि एंगल P एंगल S दे इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट पेयर है। इसी तरीके नाल एंगल Q जिहड़ा है वो एंगल R दे इक्वल है। अगेन एंड द रीजन भी सेम ही है, ऑल्टरनेट पेयर। तो इनू एंगल नू नाम दे देने 1, इनू नाम दे देने एंगल 2। तो एंगल 1 जिहड़ा है जिंदा नाम तुसी वैसे लिख सकते हो POQ। POQ इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या होएगा ROS। ROS रीजन की लिखोगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। शॉर्ट विच मैं लिख रहा V का मतलब है वर्टिकल, O का मतलब ऑपोजिट, A का मतलब है एंगल। तो आप तीनों एंगल लिखे ने, देयरफॉर असी लिखांगे बाय थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 की बोलती है कि अगर तुहाडे ट्रायंगल दे एक एंगल दूसरे कोरस्पोंडिंग एंगल दे इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल दे अगर तीनों एंगल आपस दे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल ने तो ट्रायंगल के होंगे सिमिलर। किद्दां सिमिलर होंगे, क्योंकि आपां नूं पता है कि उन्हां दी कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशियो भी की होएगी इक्वल। तो मैं लिखूंगा बाय थ्योरम 6.3 कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन रेशियो, आर इन सेम रेशियो। सो सानू पता है कि अगर तुहाडे तीनों एंगल इक्वल होन ते नाल कोरस्पोंडिंग साइड रेशियो विच होन तां इहदा मतलब दो फिगर्स की ने सिमिलर ने। देयरफॉर असीं लिख दांगे ट्रायंगल। देखो हुण सिमिलर किद्दां लिखना है, जे तुहाडा PS दे इक्वल है तो तुसीं पहले इत्थे P लिखोगे, उत्थे भी स्टार्टिंग विच S ही लिखोगे, फिर तुसीं लिखोगे QR दे इक्वल है तो सैकेंड ते जे तुसीं Q लिख रहे हो तो उनदी भी सैकेंड पोजीशन ते तुसीं R ही लिखना है। फिर केड़ा एंगल बच गया O ते O, उन्होंने सब तो एंड विच लिख देंगे। सो ये दोनों ट्रायंगल की हो गए सिमिलर हो गए। किद्दां सिमिलर होए ने, बाय A सिमिलैरिटी। तो आप प्रूव कर देता है कि ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR बाय A सिमिलैरिटी। सो हेंस प्रूव। तो इस तरीके नाल असीं देखिया कि थ्योरम 6.3 यूज हो रही है। किस तरीके नाल यूज होई, सानू बोलिया सी ये दो लाइनस पैरेलल ने, तो असीं देखिया कि एंगल P ते एंगल S ऑल्टरनेट पेयर बना रहे हैं, एंगल Q और एंगल R भी ऑल्टरनेट पेयर बना रहे हैं, तो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ने। सानू पता एक ट्रायंगल दे अगर कोरस्पोंडिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल दे इक्वल ने तो इहदा मतलब बाय थ्योरम 6.3 उन्हां दी साइड्स भी प्रपोर्शन विच होणगीਆਂ। ते साडी सिमिलैरिटी दी डेफिनेशन की हुंदी है कि हमेशा सारे फिगर दो फिगर नूं सिमिलर कदों कहोगे जदों उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल ते कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशियो की आवे सेम। तो असीं क्या कि थ्योरम 6.3 दे अकॉर्डिंग आ दोनों ट्रायंगल के हो गए सिमिलर। और ये रूल केड़ा लगा A रूल, क्योंकि थ्योरम 0.63 की हैगी है। थ्योरम 0.63 कहती है कि इफ इन टू ट्रायंगल द कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल देन देयर साइड्स आर इन सेम रेशियो हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो असी प्रूव कर दिता कि ये दोनों ट्रायंगल की ने सिमिलर, और सानू प्रूव करना सही बोलिया सी तो एंड विच मैं लिखा हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप करन जा रहे हैं इन्हां तीनों थ्योरम के बेसिस ते। आप देखते हैं किहड़ी थ्योरम इत्थे लगदी है। क्वेश्चन है
ऑब्जर्व द फिगर, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR जिंदी PR ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ 6√3, PQ है 12 एंड RQ कितना है 7.6। ऐदा ही दूसरा ट्रायंगल है ABC जिंदे विच BC है 6, AB है 3.8 ਤੇ AC की है 3√3 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ एंगल A 80 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ और एंगल B की ਦਿੱਤਾ है 60 डिग्री और वो कह रहा है कि फाइंड करो एंगल P। तो सानू इत्थों दी एंगल कढना है बट उत्थे दे एंगल सानू दिते हुए ने। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। तो पहला ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ताकि ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A किंदे कोल होएगा 180 डिग्री, क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਟੋਟਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 180 डिग्री। एंगल A ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 80 डिग्री और एंगल B ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 60 डिग्री। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ एंगल C जो कि आएगा सम करके 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू देखो 180 प्लस 60 कितना हो गया 140, उधर ले जाएंगे तो माइनस 140 हो जाएगा। सो साडे कोल एंगल C कितना आ गया 40 डिग्रीज। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਨਨੋਨ ਐਂਗਲ ਸੀ 40 डिग्री। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। तो सब तो पहले ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ कि एंगल A है 80 डिग्रीज, ठीक है, एंगल B है 60 डिग्रीज और AB लेंथ है अपने को 3.8 ते BC लेंथ है अपने को 6 ते साडे कोल AC लेंथ है 3√3, ठीक है। और नाल ही सानू PR लेंथ दी हुई है 6√3, PQ लेंथ दी हुई है सानू 12 एंड RQ लेंथ दी हुई है 7.6। और सानू टू फाइंड की करना है इस क्वेश्चन विच, टू फाइंड करना है एंगल P कितना आंदा है। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो अपने सामने तीन थ्योरम्स ने, सानू दिख रहे दो ट्रायंगल है। अगर दोनों ट्रायंगल ने इट मीन इन्हां दी अगर शेप सेम है तो किसी ना किसी तरीके नाल सिमिलर भी जरूर होंगे, ठीक है। हुण सानू पता सिमिलैरिटी दे बेस ते आपां तीन थ्योरम डिस्कस कीती है। सब तो पहली थ्योरम है 6.3 जिंदी की कंडीशन हुंदी है कि अगर सारे एंगल इक्वल होन तो साइड्स प्रोपोर्शन विच होणगीਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कहोगे कि ट्रायंगल की है सिमिलर। कि ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ एंगल पता ने सानू नहीं पता, तो इट मीनस आप थ्योरम 6.3 ਤਾਂ लगा ही नहीं सकते। फिर ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ थ्योरम 6.4 ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि अगर दो ट्रायंगल ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਈਡਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो पहला मैं BC देखता जो कि 6 है। अगर मैं BC रेशो PQ देखा तो कितनी आ रही है 1/2, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है 1/2। ऐदा ही AC कितना है 3√3, उनकी रेशो में अगर PR दे नाल देखा तो 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3 वो भी 1/2 ही आ रही है। तो जे मैं देखा AB लेंथ उनकी रेशो अगर PQ दे नाल देखा मतलब 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6 उनकी रेशो भी क्या आ रही है 1/2। इट मीनस थ्योरम 6.4 की पहली कंडीशन सैटिस्फाई है जो कि कहती है कि कोरसपोंडिंग साइड्स क्या रेशो से। तो उत्थों दे की असीं कह सकते हैं कि उन्होंने कोरसपोंडिंग एंगल भी इक्वल ने, तो फिर असीं कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल की ने सिमिलर ने। तो सानू आइडेंटिफाई हो गया कि केड़ी थ्योरम लग रही है थ्योरम 6.4। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इत्थे दिखा देने हैं कि अपने केड़ी साइड्स रेशो च आ रही हैं। असीं देखिए AB रेशो करके देखते हैं। असीं देखो 7.8 की रेशो आप RQ दे नाल देखी जो कितनी आ रही सी अपने को 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6 कटिंग करके आ गई सी 1/2। ऐदा ही जो मैं रेशो देखी AC दी किंदे नाल PR दे नाल ता रेशो कितनी आ गई 3√3 डिवाइडेड बाय 6√3। अगेन ये भी रेशो कितनी आ गई 1/2। सेम तरीके दे नाल फिर मैं देखी अपनी रेशो BC दी किंदे नाल PQ दे नाल, वो कितनी आ गई 6 डिवाइडेड बाय 12 वो भी आ गई 1/2। तो असी कहांगे एज AB अपॉन RQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन PQ
is equal to 1/2. So by theorem 6.4, अगेन तुसी थ्योरम दी पूरी स्टेटमेंट लिखोगे जो कि तुहाडे सामने है, एक बार रिपीट कर देना। थ्योरम 6.4 की कहती है, if in two triangle the side of one triangle is proportional to the side of other, then their corresponding angle are equal, hence the two triangle are similar। और इस सिमिलैरिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, एस सिमिलैरिटी। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि साइड रेशियो है, तो corresponding angle ਕਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, r ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, एंगल a इक्वल टू एंगल r। ठीक है, इदा ही तुसी लिखोगे। एक मिनट मैं तुहानू दस देना, पहले ट्राइंगल किहड़ा सिमिलर होएगा उपर रफ विच लिख लैंदे आ, तां फिर मैनूं आइडिया हो जाएगा कि किहड़ा ट्राइंगल सिमिलर होएगा। देखो तुसी लिखिया ए बी, उनदी रेशो किंदे नाल देख रहे हो, आर क्यू दे नाल, तां आर क्यू लिखिया। बाद विच असीं सी लिख दांगे क्योंकि दो ही ट्राइंगल है, एक तां है ए बी सी और की है एक आर पी क्यू, तो एंड एक पी लिख दिता। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, असीं रफ विच लिख लैंदे आ। इत्थों दी मैं दस देना किहड़े एंगल इक्वल होंगे। देखो किद्दां लिखिया, पहला मैं लिखिया ए बी, तो मैं इत्थे ए बी ही लिखिया। फिर उनकी रेशो किहदे नाल देख रहे सी, आर क्यू दे नाल, तो मैं इत्थे आर क्यू लिखिया। फिर किहड़ी पॉइंट बच गया सीगा, पी क्यू आर दे विचों पी पॉइंट बच गया सी, तो मैं वो लिख दिता। और ए बी सी दे विचों लास्ट पॉइंट सी बचा सी, मैं वो लिख दिता। तो हुण सानूं पता लग गया किहड़े एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए एंगल आर दे इक्वल होगा, एंगल बी जिहड़ा है एंगल क्यू दे इक्वल होएगा, तो एंगल सी जिहड़ा एंगल पी दे इक्वल होएगा। ठीक है, तो आपां इत्थे लिखदे हां एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी जिहड़ा है वो किंदे इक्वल होएगा, एंगल क्यू, तो एंगल सी जिहड़ा है वो एंगल पी दे इक्वल होएगा। सानू फाइंड की करना है, एंगल पी फाइंड करना सीगा, और असीं क्या कि एंगल पी जिहड़ा है वो एंगल सी दे इक्वल है। सी असीं कट चुके हैं 40 डिग्रीज, तो इहदा मतलब एंगल पी कितना आ गया, 40 डिग्रीज। केड़ी थ्योरम लगी है इत्थे, इत्थे लगी है थ्योरम 6.4, जो कि कहती है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो इक्वल आएगी दो ट्राइंगल्स की, तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आएंगे, तो ट्राइंगल की हो जाएगा सिमिलर बाय एस सिमिलैरिटी। सो अपने को एंगल कितना आ गया है, एंगल पी 40 डिग्रीज। तो इस तरीके नाल असीं देखिया कि थ्योरम 6.4 किद्दां आपां इस क्वेश्चन विच यूज़ कीती है। सो आपां देखिया थ्योरम 6.3 ते थ्योरम 6.4 किद्दां यूज़ हुई है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, आपां देखते हैं किहड़ी थ्योरम इत्थे यूज़ होएगी। क्वेश्चन विच बोलिया गया है इन अ फिगर, अगेन सानूं एक फिगर दित्ती है जिंदे विच एक ट्राइंगल है ADO ते दूजा है OCB, जो कि तुहाडे सामने दिख रहा तुहानूं। हुण इत्थे बोलिया गया है कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो अगेन सानू दिख रहा है इत्थे दो ट्राइंगल, जे दो ट्राइंगल है जिन्हां दी शेप सेम है तो किसी ना किसी तरीके नाल सिमिलर भी जरूर होंगे। तो जे आपां थ्योरम 6.3 लगाना चाहते हैं तो सारे एंगल इक्वल आने चाहिए है। इत्थे सारे एंगल आपां नूं पता नहीं इक्वल आ रहे कि नहीं, बट मैंने एक गल पता है कि आ एंगल ते ए एंगल तो इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ एंगल ने वो इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ਆਪਾਂ नहीं दिता तो ਅਸੀਂ नहीं लिख सकते कि एंगल इक्वल ने। जे आप दूसरी थ्योरम लगाना चाहते हैं तो दिखनी चाहिए सानू सारी साइड्स की रेशो इक्वल, बट इत्थे जिहड़ी है अगर आप इन्हूं थोड़ा जिहा खोल के लिखिए, सानू लिखा है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। तो आप वध तो वध की कर सकते हैं, OE के थले OC ले आने, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB के थले OA अपॉन OC ले आने ते OD अपॉन OB ले आने। मतलब OA दी रेशो आपां देख रहे हैं OC दे नाल एंड अपने कोल जिहड़ी है OD उनकी रेशो देख रहे हैं सी OB दे नाल, बट साडे कोल जिहड़ी थर्ड लाइन है जो कि है AD उनकी रेशो BC नाल इक्वल है, ये नहीं दित्ती हुई। इट मीनस अपने कोल थ्योरम 6.4 भी नहीं लग सकती। ठीक है, अपन ने जो चीज़ें दित्ती सी उन्हें रीअरेंज करके लिखा है, तो असीं देखिया कि साडे कोल OA रेशो OC दित्ती हुई है दो ट्राइंगल्स दे विच, ते नाल ही सानू दित्ती है कि OD रेशो OB ये दोनों तो इक्वल ने। बट थ्योरम 6.4 कदों लगा सकते हैं जे सानू दिता होवे कि AD रेशो BC भी इक्वल है, तो इहदा मतलब थ्योरम 6.4 भी नहीं लग रही। फिर साडे कोल किहड़ी ऑप्शन बची है, थ्योरम 6.5, जो कि बोलता है कि दो अपने कोल एक एंगल इक्वल आवे तो उन्होंने इंक्लूड करती हुई साइड्स की रेशो इक्वल आवे। तो आप देखिए अपने कोल किहड़ी साइड्स की रेशो इक्वल है, OA अपॉन OC, ठीक है, एंड एक सानू दी हुई है OD रेशो OB। ठीक है, देखो आपां नूं दो साइड्स जिन्हां दी रेशो दित्ती है और उन्हां दे इंक्लूड करदा है एंगल भी इक्वल है। इट मीनस द थ्योरम 6.5 दी कंडीशन नूं
ट्रू कर रहा है, होल्ड कर रहा है। किस तरीके नाल? क्योंकि थ्योरम 6.5 की स्टेटमेंट की है, इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अदर then their corresponding sides including these angle are proportional, then the two triangles are similar। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥਿਓਰਮ 6.5 ਜੋ ਕਿ ਹੈ SAS ਕੌਨਗਰੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ SAS ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਿਵਨ, जो गिवन है अपन की दिता है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, जिन्होंने मैं रीअरेंज करके हुणे लिखा है वो मैं इत्थे लिख देना OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। तो ये सानू गिवन है, ठीक है। तो अपन टू शो की करना है, टू प्रूव की करना है, टू प्रूव करना है एंगल A एंगल C दे इक्वल आवे ते एंगल B जिहड़ा है एंगल D दे इक्वल आवे। तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रूफ दे विच। तो पहला तो आप लिख देंगे कि जिहड़ा साडे कोल एंगल AOD है वो किंदे इक्वल है एंगल COB दे, क्योंकि यह कि ने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ऑल्सो सानू दिख रहा है कि OA रेशो OC इज इक्वल टू OD रेशो OB है, क्योंकि ये सानू गिवन है। सो अपन दिख रहा है कि दो एंगल एक तो एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, तो नाल ही उन्होंने कॉरस्पोंडिंग साइड्स जो कि वो एंगल इंक्लूड कर रही है और रेशो है। देयरफॉर असी कह देंगे बाय थ्योरम 6.5 साडे कोल दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगेन ट्रायंगल कितना लिखोगे, जो तुसी लिख रहे हो OA तो पहले इत्थे OA लिखोगे रेशो और उत्थे तुसी OD लिखो, सॉरी OA दे नाल तुसी उत्थे OC लिखोगे, ठीक है। आप सिमिलैरिटी का साइन पा दें। हुण सानूं पता है OA लिख चुके हैं, किहड़ा पॉइंट रह गया इत्थे D रह गया, और उत्थे OC लिख चुके हैं तो किहड़ा पॉइंट रह गया B रह गया। सो एक किहदे नाल सिमिलर होए बाय SAS। सानूं पता है जदों भी दो ट्रायंगल सिमिलर होण उन्हां दे एंगल भी की हुंदे ने, इक्वल हुंदे ने, क्योंकि आपां सिमिलैरिटी दी डेफिनेशन ही कीती है कि दो फिगर्स नूं सिमिलर कदों कहोगे, जदों उन्हां दे एंगल भी इक्वल होण ते नालों नालों प्रपोर्शनल भी होण उन्हां दी साइड्स। तो आप उसी बेस ते कह सकते हैं कि जिहड़ा एंगल A है वो किंदे कोल एंगल C दे, ते एंगल D जिहड़ा है वो किंदे कोल आ गया एंगल B दे। इत्थे आपां कह देंगे कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स CPST, क्योंकि आपां नूं डेफिनेशन पता है सिमिलैरिटी दी। वो कहंदे ने दो ट्रायंगल्स नूं सिमिलर कदों कहोगे, जदों उन्हां दे कॉरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होण ते साइड्स भी प्रोपोर्शनल होण। सानूं तां एंगल इक्वल करने ने, असीं एंगल वाला पार्ट ही सिर्फ इत्थे लिखिया है। सो सानूं प्रूव हो गया कि एंगल A किंदे इक्वल एंगल C दे और एंगल D जिहड़ा है वो एंगल B दे बाय CPST। सो इस तरीके नाल असीं देखिया कि थ्योरम 6.5 किद्दां यूज़ हुई है। अपन दिख रहा सी कि यह दो एंगल तो इक्वल है ही ने बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो उन्होंने इंक्लूड करती हुई साइड्स की है रेशो दे इक्वल। सो थ्योरम 6.5 की कंडीशन वैलिड हो रही। तो थ्योरम 6.5 की स्टेटमेंट की सीगी, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर and their corresponding sides including these angle are proportional, then their two triangles are similar by SAS rule। तो असी की क्या कि दोनों एंगल इक्वल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है। सो थ्योरम 6.5 दे नाल अपने कोल OA अपॉन OC, देखो OA फिर इत्थे OC लिखिया, तो जिहड़ा पॉइंट बच गया D और उत्थे पॉइंट बचा सी B, तो असीं कहते हैं एंगल A जिहड़ा है एंगल C दे इक्वल है, एंगल D जिहड़ा है एंगल B दे इक्वल है बाय CPST। सो इस तरीके नाल आपां थ्योरम 6.5 दा एक क्वेश्चन कीता है। सो नैक्सट क्वेश्चन आपां ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन विच स्टेटमेंट देखो की है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो इंदे च की है, कहंदे एक लैंप है, कुड़ी लैंप तो भज रही है कितनी स्पीड दे नाल 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे नाल, तो ऑब्वियसली इहदी शैडो भी चेंज होएगी। कहंदे दसो किद्दां चेंज हो रही है आफ्टर 4 सेकंड। सो आपां नूं जिहड़ी चीज़ां दित्तियां आपां मार्क कर लैणे। सानूं गर्ल की हाइट दित्ती है 90 सेंटीमीटर, आ गर्ल है 90 सेंटीमीटर, तो नाल ही सानूं लैंपोज दिता है 3.6 मीटर। तो आपां लैंपोज की जगह लिख दिता 3.6 मीटर। गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर सी, तो यूनिट सेम करके आपां लिख दिता 90 डिवाइडेड बाय 100
जो कि आ जाएगा 0.9 मीटर्स। तो जो गर्ल है वो कितनी लंबी है 0.9 मीटर लंबी है। तो आप इतने शॉर्ट ही लिख देने कि गर्ल की जी हाइट है दैट इज 0.9 मीटर। नाल ही उन्हें बोलिया है कि जो लैंप तो कुड़ी जी भज रही है उनकी स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम बाद देखना है 4 सेकेंड के बाद। तो सानू पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होंगे। स्पीड कितनी है 1.2 और डिस्टेंस सानू पता नहीं बट टाइम सानू दिता है 4। तो आप डिस्टेंस दस सकते हैं कितना उन्हें ट्रैवल किया है, वो आ जाएगा 1.2 इंटू 4 जो कि आ जाएगा 4.8 मीटर्स। तो इट मीनस कुड़ी इत्थों दी इत्थे तक भजी है कितनी स्पीड के नाल 4.8 मीटर की स्पीड के नाल। तो आप उनकी शैडो जी है उन्होंने लेट कर लेने कि है x। ठीक है, आ लैंपोस है, लैंपोस की हाइट दी है 3.6 मीटर। गर्ल की हाइट दी है सानू जो कि गर्ल है सी डी पॉइंट पे। ठीक है, तो गर्ल का पॉइंट है सी डी, आप वो भी मार्क कर दिता। गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर से, यूनिट सेम करने वास्ते 90 डिवाइड बाय 100 किया तो 0.9 मीटर आ गया। तो नाल ही कुड़ी दी शैडो पूछी है तो आप शैडो लेट कर लेने x है। सानू पता है ए आपां नू कितना डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल किया, आप कढ़िया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नाल। तो डिस्टेंस आ गया स्पीड इंटू टाइम जो कि आ गया 4.8 क्योंकि टाइम दिता है 4 सेकेंड और स्पीड दी सी 1.2 सेकेंड्स। हुण अगेन अपन दिख रहे थे ट्राइंगल, देखो केड़ा केड़ा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। ठीक है, क्लीयरली अपन ये पता है लैंपोस जो 90 डिग्री बना रहे हैं ये तो क्लीयरली 90 डिग्री हो गया क्योंकि गर्ल जी है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ेगी ग्राउंड पे। जो भी कोई चीज़ ग्राउंड तो स्ट्रेट खड़ती है तो 90 डिग्री ही बनाती है हमेशा। हुण आपां देखते हैं सानू दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABE और एक ट्राइंगल है CDE। किसी भी तरीके दे नाल ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ट्राइंगल ਨੂੰ सिमिलर कर ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ सिमिलर हो ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ मैं कह दूंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ਦੇ इक्वल ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ AAA रूल लगना चाहिए या SSS रूल लगना चाहिए या SAS। तो SSS रूल तो क्लीयरली नहीं लग सकता क्योंकि सानू जे मैं ये ट्राइंगल देख रहा वा तो इनकी सिर्फ इको एक साइड नोन है, बाकी साइड तो अननोन है। तो इट मीनस या तो AA रूल लग रहा है। तो AA रूल कितना लग रहा है देखते आप। देखो जो तो मैं ट्राइंगल वड्डे वाला कह रहा वा, ठीक है, उदो एंगल B की है 90 डिग्री। तो आप ये छोटे वाले ट्राइंगल भी कह रहे हैं कि एंगल D की है 90 डिग्री। दूसरी गल अगर मैं वड्डे वाला ट्राइंगल देखा उहदे एंगल E आ रहा है तो छोटे वाले ट्राइंगल भी उही एंगल E आ रहा है। इट मीनस E और E की हो गए कॉमन। अपन पता है एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल ने तो ओबवियसली तीसरा एंगल भी इक्वल होएगा क्योंकि तीसरा एंगल कितना बनया होएगा 180 चो इन्होंने दोनों के सम माइनस करके। तो इट मीनस अल्टीमेटली एंगल A और एंगल C भी हो गए इक्वल ही हो गए। सानू पता है जे तीनों एंगल इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की उनके रेशो के विच ते दोनों ट्राइंगल की हो जाएगी सिमिलर। तो उत्थों दी आपां अननोन वैल्यू है कट सकते हैं। ठीक है, तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन अपन जो गिवन है आप लिखांगे गिवन अपन दिता है कि AB की वैल्यू दी है 3.6 मीटर तो CD की वैल्यू सानू दी है 0.9 मीटर। ठीक है, और स्पीड दी हुई सी सानू 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम जोड़ा है वो सानू दिता है सी 4 सेकेंड्स। ठीक है, सो आपां की करते हैं सानू टू फाइंड की करना है, टू फाइंड करना है शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। सो लेंथ ऑफ शैडो ली मतलब आपां की करना चाहते हाँ DE जो कि एक्चुअली x है। तो इनकी वैल्यू आपां नू कटनी है। तो आपां सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला तो मैं लिख दूंगा सानू पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो मैं उत्थे लिखा। तो अपने को डिस्टेंस किंदे कोल आ गया स्पीड इंटू टाइम दे इक्वल। तो स्पीड सी 1.2 और टाइम सी 4 तो यह आ गया सी अपने को 4.8 मीटर और ये जो डिस्टेंस आया वो एक्चुअली BD डिस्टेंस आया। इतने B जो है उन्हें डार्क कर लेना है थोड़ा मिट गया। ठीक है, सो साढ़े को जी BD लेंथ आई है हुई है 4.8 मीटर। सो हम आप स्टार्ट करते हैं। पहला तो ट्राइंगल चलते हैं इन ट्राइंगल ABE तो दूसरा ट्राइंगल केड़ा चकना है छोटे वाला ट्राइंगल CDE। तो पहला आप लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D ईच 90 डिग्री। ऐदा ही एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कॉमन। सानू पता है 180 चो जे असी B और E माइनस कर देंगे तो किंदे को आएगा 180 चो D और E माइनस करके क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल ने
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 180 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। तो इस ट्रायंगल ਵਿੱਚ देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B और E ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ A ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਂਗਲ A और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਚੋਂ ਅਗਰ D और E ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ C ਬਚੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾय ਥਿਓਰਮ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। तो ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾय ਥਿਓਰਮ 6.3 क्योंकि थ्योरम 6.3 की बोलती है कि अगर तुहाडे दो ट्रायंगल दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ने तो उन्हां दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी की होणगीਆਂ रेशियो ਦੇ ਵਿੱਚ और दो ट्रायंगल की हो जाएंगे सिमिलर। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया कि ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B है वो D ਦੇ ਇਕੁਅਲ है। इट मीनस ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ B ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ट्रायंगल ਦਾ D ਲਿਖਾਂਗੇ। तो इसी तरीके नाल जे ਇੱਥੇ E ਲਿਖਿਆ ਹੈ तो ਉੱਥੇ ਵੀ E तो फिर एंड विच A और A तो क्लीयर मैं दस्सिया ही सीगा जे एंगल B एंगल D दे इक्वल है तो तुसीं इत्थे B लिखोगे इत्थे D, एंगल E दे इक्वल है तो सेकेंड पोजीशन ते E रखोगे। फिर असीं क्या कि एंगल A C दे इक्वल है तो इत्थे A लिखिया और इत्थे की लिखिया असीं C। सो दो ट्रायंगल के हो गए सिमिलर हो गए। तो इन्ना मतलब इन्हां दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी की रेशियो दे इक्वल। इट मीनस असीं लिख दांगे BE रेशियो DE इज इक्वल टू BA रेशियो DC इज इक्वल टू EA रेशियो EC। देखो कितना लिखा है BE रेशियो DE, फिर लिखा है BA रेशियो DC, फिर लिखा है EA रेशियो EC। हुण देखो सानू केड़ी वैल्यूज नोन ने। सानू AB की वैल्यू पता है 3.6 तो आप AB की जगह लिख देने 3.6। DC की वैल्यू सानू पता है नहीं 0.9 असी वो भी लिख देना 0.9। BE की वैल्यू सानू दित्ती हुई है आपां हुणे टोटल देखो टोटल BE की वैल्यू कितनी होएगी 4.8 प्लस x ते जिहड़ी DE है उनकी वैल्यू है x। तो सानू इस चीज़ की तो लोड़ ही नहीं हैगी तो आपां उहनूं इरेज कर दिता। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली सीगियां तो मैं EA अपॉन EC वाली पार्ट नूं रिमूव कर दिता क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। इहनूं सॉल्व करांगे साडे कोल x निकल आएगा। तो आपां इहनूं सॉल्व करदे x लई पहला तो पहली कटिंग कर देने ये डेसिमल हटूगा 10 कट्टे जाएंगे 9 1 9 4 तो इनू सॉल्व करके कितना आ गया 4.8 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इतों आ जाएगा 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 4x। इनू उधर ले जाने तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 4.8 तो 3x इज इक्वल टू 4.8। ਆਪਾਂ जरा 4.8 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਦਾ 3 1 ਦਾ 3 1 डेसिमल 6। सो आंसर क्या आ गया 1.6 मीटर। इट मीन ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਆ ਗਈ 1.6 मीटर। इस क्वेश्चन ਦਾ ਕੀ ਹੈ आंसर। समझ आया ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ट्रायंगल लिता और छोटा ट्रायंगल लिता उनके विच आपां देखिया क्योंकि ये ट्रायंगल है तो किसी ना किसी तरीके नाल सिमिलर होणगे। थ्योरम 6.3 कहंदे कि उन्हां दे एंगल इक्वल होण तां आपां कहांगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो च है तां असीं कह देंगे ट्रायंगल सिमिलर है। थ्योरम 6.4 बोलदी है कि उन्हां दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो च होण दैन असीं कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर ते उन्हां दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। बट इत्थे आपां देखिया कि साइड्स रेशियो च आ ही नहीं सकदियां क्योंकि आपां नूं कुछ साइड्स अननोन ने। इट मीनस किते ना किते थ्योरम 6.3 लग रही है। फिर मैं ध्यान नाल देखिया कि एंगल B एंगल C दे इक्वल सी वड्डे ट्रायंगल विच भी E आ रहा है छोटे ट्रायंगल विच भी E आ रहा है। अगर दो एंगल इक्वल ने तो 180 चो अगर दोनों का सम भी माइनस करोगे वो भी इक्वल आएंगे। सो असीं कहते हैं दोनों ट्रायंगल की ने सिमिलर। तो थ्योरम 6.3 की कहती है कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो नाल ही उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की होगी रेशियो दे इक्वल। तो असीं कहते हैं BE अपॉन DE इज इक्वल टू BA अपॉन DC। तो BE कितनी सी 4.8 प्लस x तो BE की जगह लिखा 4.8 अपॉन x DE की जगह आप लिखा x तो इत्थे x। फिर आपां नूं A भी दित्ती हुई सी 3.6 ते नाल ही सानूं CD दित्ती हुई सीगी 0.9। सॉल्व किया साडे कोल x कितना आ गया 1.6 मीटर जो कि एक्चुअली लेंथ ऑफ शेडो आ रही है आफ्टर 4 सेकेंड जो कि आई है अपने कोल 1.6 मीटर। सो स्टूडेंट्स आज आप देखा कि किस तरीके ना थ्योरम 6.3 6.4 ते 6.5 यूज हुई है। स्टेटमेंट तुहाडे सामने एक बार इन्हूं नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये थ्योरम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ स्टेटमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ स्टार्ट कर सकते हो ਤੇ एंड कर सकते हो। तो ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ क्वेश्चन ट्राई करांगे। सो धन्यवाद।